Hello students, today we are going to study the topic AIDS. It is the subtopic given in the chapter Human Health and Diseases. So student, when we see the full form of this AIDS, it is what? Acquired immunodeficiency syndrome. This is the full form of the disease AIDS. So students, when we see acquired, what is the meaning of acquire over here? Acquire simply meaning is that the things which we acquire during our lifetime. Meaning is that this thing is not present when we took birth. So this is not an congenital disease. And this is the disease which affect our immune system. Due to this particular disease, the overall deficiency occur in our immune system. Another thing is that it is a syndrome. Syndrome meaning is what? That it is a group of disease. So AIDS is what? Acquired immunodeficiency syndrome. Now students, let's see first case of AIDS. First of all, AIDS occurred in USA. 1981. First case in India in 1986. So this is something about the AIDS incidence. Another thing is that AIDS is what? It's a virus disease, right? What kind of virus it is? It is a retrovirus. Its meaning is what? It is an RNA virus. What is the meaning of RNA virus? The virus which converts RNA into DNA by the help of reverse transcriptase enzyme. This is something about this particular virus, and this is the HIV virus, right? Another thing is that when we see the HIV virus, HIV is of two type. One is going to be what? Type 1, another is going to be what? Type 2. When we see type 1 is present all over the countries, like it is present in Europe, it is present in America, it is seen in Asia. And when we see about the HIV second, it is seen in Africa. It is quite rare. HIV second is quite rare, right? So this is something about the uh, pathogen which is present and which is responsible for this particular disease. Now student, we will see mode of action. So when we talk about the mode of action, this particular virus act on macrophage cell. Okay, it acts on macrophage cells, and these cells are known as what? The HIV factory. These are known as what? The HIV factory, right? So this is something about the macrophage. Now we see how this virus enter in these macrophages. So this macrophage is having a specific receptor on its surface known as what? CD4 receptor. And with this CD4 receptor,
with this CD4 receptor, the HIV virus bind. And this HIV virus is having glycoprotein 120, which binds with this CD4 receptor, because every virus or bacteria needs a receptor on a specific cell. When interaction occurs in between receptors, then it allows the entry of particular genome inside the cell. So virus ने मैक्रोफेज के रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट किया, जिसकी वजह से जो वायरस का जीनोम होता है, जो कि होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, वो मैक्रोफेज के अंदर एंटर करता है और यहाँ पर वायरस के पास प्रेजेंट होता है एंजाइम, जो कि है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से ये किसमें बदल जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल दिया जाता है. Okay, so this is because of that particular reverse transcriptase. Now, in the macrophage, nucleus is present, and in this nucleus what is present? Double stranded DNA. With this double stranded DNA, this single stranded DNA of virus binds. And it integrates with it. As it's going to integrate it, finally, lot of viral DNAs are synthesized, and outside it, protein core is formed. And finally, these newly formed viruses released outside. Okay, so this is something about the mode of action of this particular HIV virus. Now students, let's see the structure of HIV virus. So when we see the structure of this HIV virus, we see that it is having a double membrane structure. It is a double membrane bound structure. It is having a phospholipid bilayer. Besides it, it is also having what? Glycoproteins. These glycoproteins are having an appearance like an ice cream cone. So students, the glycoprotein which is present outside, it is what? Glycoprotein 120, and the glycoprotein which is embedded in the membrane is what? Glycoprotein 41, and these all three are making what? The envelope.
envelope of virus, right? So these are the three things which are forming the envelope of this particular HIV virus. अगर किसी को भी बच्चे को इस पार्ट में डाउट है तो पूछ सकते हैं. Now students, in this, inside this envelope, one thing is also present. This is what? Matrix. And inside this matrix, what is present? Anybody? कुछ चेन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बच्चों. जिसे हम बोलते हैं क्या? एनीबडी ऑफ यू, एनी गेसेस? इसे हम बोलते हैं कैप्सिड. ओके जी. और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. इसके अलावा इसमें कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं. और वो कौन से एंजाइम हैं उनको देख लेते हैं. सबसे बाहर प्रेजेंट होता है क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये वो एंजाइम है जो कि आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है. ओके जी. Besides it, it is also having the enzyme known as protease. Now, what is the function of this protease? Viral protein synthesis. And it is also having one enzyme integrase, right, which help in the integration of viral DNA into the host genome. So this is the structure of HIV virus. I have discussed this thing with you that it is a retrovirus. मीनिंग इज दैट द वायरस जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है जो कि आरएनए से डीएनए को बनाता है और उसके लिए जो एंजाइम होता है दैट इज व्हाट? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ये कुछ बातें हमने यहाँ पर की हैं. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फर्दर and see some another aspects related to this particular HIV virus. So students, we have seen the structure of virus और ये किस सेल को इन्फेक्ट करता है. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि आखिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इस डिसीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं. सो जब भी स्टूडेंट्स हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो वही नॉर्मल सिम्टम्स जैसे कि फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, डायरिया एटसेट्रा, ये सारे सिम्टम्स इसकी वजह से होते हैं और ओवरऑल इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होती है. जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसमें कंबाइंड इफेक्ट होता है. तो पेशेंट को समझ में ही नहीं आता है कि उसको एड्स हुआ है या कुछ और हुआ है. और इसका जो डायग्नोसिस है वो भी बहुत लंबे समय तक होता है. तो पेशेंट को समझ में ही नहीं आता है कि उसको कौन सी डिसीज़ हुई है. राइट. सो ये कुछ इसके सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं. और ओवरऑल अगर हम बोलें तो इसमें पूरी की पूरी बॉडी में वीकनेस आ जाती है. तो वो पेशेंट अपने काम ही नहीं कर पाता है प्रॉपरली. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड फ्यू मंथ से ईयर्स तक हो सकता है. 5 to 10 years.
पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर HIV वायरस है, और इस चीज़ का पता लगने में सालों लग जाते हैं। और जब उसको इस बात का पता चलता है कि उसको HIV वायरस की वजह से एड्स हो गया है, तब तक बहुत सारा टाइम निकल जाता है। इसीलिए ये बहुत खतरनाक डिसीज़ है एड्स, जिसमें हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। हमें लगता है नॉर्मल हेडेक हुआ है, नॉर्मल डायरिया हुआ है, फीवर हुआ है, उन सब दवाइयों को ही ह्यूमन इनटेक करता रहता है, बट उसको समझ में ही नहीं आता है कि वो एक बहुत सीवियर डिसीज से सफ़र कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द ट्रांसमिशन ऑफ दिस HIV वायरस। सो अगर मैं एड्स की बात करूं तो इसका ट्रांसमिशन होता है थ्रू ब्लड कांटेक्ट। आपको एक बात पता है कि काफ़ी बार हम ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, कभी किसी को कोई डिसीज़ हो जाती है तो वो ब्लड को किसी दूसरे ह्यूमन से लेता है। अगर उस ह्यूमन के अंदर HIV वायरस है तो लेने वाले पेशेंट के अंदर भी ये ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है तो प्रॉपर पूरी टेस्टिंग की जाती है उस पर्सन की कि उसको किसी तरह की डिसऑर्डर तो नहीं है। तो इसका ट्रांसमिशन थ्रू ब्लड कॉन्टैक्ट हो सकता है। शेयरिंग नीडल्स, अगर हॉस्पिटल में किसी ने इंजेक्शन यूज़ किया और वो नीडल प्रॉपर स्टरलाइज नहीं थी, तब भी ये डिसऑर्डर ट्रांसमिट हो सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट, मदर टू फीटस। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो, और अगर वो मदर के अंदर ये HIV वायरस है, तो उससे होने वाला जो फीटस है उसके अंदर भी ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। और अगर कोई यंग वन अपनी मदर का मिल्क का इंटेक करता है तो उसकी वजह से भी ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट। सो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से एड्स ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसके ट्रांसमिशन से बचने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। Now students, let's see the diagnosis. डायग्नोसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीज। सो जब भी हम इसके डायग्नोसिस की बात करते हैं तो एलाइजा एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम एड्स का पता लगाते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ओके जी, ये इसका डायग्नोसिस होता है। अगर हमें कंफर्म करना है कि एड्स है पेशेंट को, तो उसके लिए हमें करना होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, राइट। और जब भी हम एलाइजा की बात करते हैं तो जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है उसका नाम होता है एंटीजन एंटीबॉडी interaction. It is based on this particular principle of antigen antibody interaction. Now students, another type of diagnosis is what, PCR, and the full form of PCR is what, the Murray's chain reaction. This is the another way of diagnosis of this AIDS. Now students, we will see some drugs which are given if a patient is suffering with AIDS.
सबसे बड़ी बात ये होती है एड्स एक ऐसी डिसीज है जिसका प्रिवेंशन किया जाता है, प्रॉपर क्योर नहीं किया जा सकता। अगर हम ड्रग्स का इंटेक करते हैं तो हम इस डिसीज को लंबे समय के लिए टाल सकते हैं, पर प्रॉपरली हम इसको सही नहीं कर सकते। हम इसको बोल सकते हैं दैट वी आर डूइंग व्हाट, वी आर डूइंग द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसीज। सो इसके लिए कुछ ड्रग्स डिजाइन हैं, जैसे कि AZT। दूसरी ड्रग होती है जीडो। Budin, and these are what the antiviral drugs. दिस इज वॉट द एंटीवायरल थेरेपी। ये सभी दवाइयाँ वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं, उसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकती, बट हाँ ये लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ऑफ एड्स। अगर एड्स को प्रिवेंट करना है वर्ल्ड वाइड, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम होता है बच्चों नैको। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड वाइड जो एड्स डिसीज है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है, और इसका लोगो होता है, एक साइन गिवन है बच्चों कुछ इस तरह का, ठीक है, वो इसके लिए यूज किया जाता है। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे बनाया जाता है। और अगर हम इस डिसीज को क्योर करना चाहते हैं तो प्रिवेंशन इज द क्योर फॉर दिस पर्टिकुलर डिसीज। फॉर दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। सो उसके लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स। सभी यंग वंस को, एडोलेसेंट को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स किया जाना चाहिए, ताकि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो प्रोटेक्टेड हो। नेक्स्ट थिंग इज दैट कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज। लॉट ऑफ यंग वन आर इन्वॉल्व इन इनटेक ऑफ ड्रग। सो उस केस में भी हमें आगे आना चाहिए और उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें की जाती हैं तो एड्स जैसे डिसीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। सो स्टूडेंट, इट इज़ समथिंग अबाउट द एड्स विच इज़ गिवन योर 11th 12th स्टैंडर्ड चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट एंड गिव यू गुड इन्फॉर्मेशन, एंड इफ आई से करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लेट मी नो, और अगर कोई कमी लगी हो तो वो भी साथ में बताइएगा। थैंक यू so much for joining us. Thank you all. Thank you.